Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Gurudeva ki jai, Srila Swami Prabhupada ki jai, Rupanuga Gaudiya Guru Varga ki jai, Saparshad Gaur Hari ki jai, Gaur Nityananda Prabhu ki jai, Shri Radhara Manju ki jai, ललिता विशाख इत्यादि सखी गण की जय, शिरुपरति आदि मंजरी गण की जय, समस्त ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, हरिनाम प्रभु की जय, निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल. Offering my pranam to my beloved Gurudev, Shri Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, and offering my pranam to our gracious hosts here, my dear godbrother Nityananda Prabhu and God sister Sudevi Mataji. Dandavat pranams. Okay, thank you so much for inviting us to your home. Also my pranam and gratitude to dear Jasmine. She is like my buddy Ben. Okay. So she also brought us here to Muscat, very beautiful city. We heard yesterday at the house program of Rasa Krida Prabhuji. Yes? Bharat Prabhuji. Yes, Bharat Prabhuji Mataji, your home Bharat Prabhu and Ashu Mataji. So we were hearing there from Rasakrita Prabhu that His Holiness Jaipatak Maharaj gave the name to this city, Mathura Desh, New Mathura Desh, and Rajpur. New Rajapur. Very nice. Because when I saw the city, I thought it looks like Dwarka, but very clean and pure, white buildings. But Mathura transferred to Dwarka. But the same. I don't know what Dwarka looked like at that time, but Dwarka is not by the ocean, but Dwarka is by the ocean. So I have to say this, that when the Indians used to come to Oman, they used to park up the shore. It's called... Yeah, the area is Mathura, the Cornish. Okay. And actually it's called Mathura, and the behind lanes, if you go walk, it's modernized now, but otherwise you feel you're in the lanes of Mathura only. In the ancient Sanatan Dharma time, Sanatan Dharma had spread throughout the world, and especially Sanatan culture, as I understand, they ruled over Afghanistan and Oman, I imagine, different areas as well. So the ancient name was Mathura? It's still called Mathura. Still called Mathura? It's Mathura. They say Mathura. Yeah, it's called Mathura. It's called Mathura. Yeah. So how we have, Mathura is one area or Muscat? It's an area. It's the beach where the boat come from India. Oh, Actually, wow. it's a major tourist spot. There's a souk there and Cornish there. So it is Mathura. Very nice. Actually, the behind Krishna's lanes, if you Mathura. walk, some of the parts actually, it reminds you like that only. So I lived in Mathura for 7 years. When I finished my schooling, my Gurudev asked me to come to India, and he had his temple there in Mathura, many temples, but I lived there in Mathura. We have a temple there right on the main highway, Indian highway. So highway for cows, highway for rickshaws, highway for temple, highway for bus, highway for pilgrims, main highway. India is like... On the way to Holy Gate. So in the morning we'd go through Holy Gate to Vishram Ghat and offer prayers there. Actually in the mornings when I lived there, I would go and walk to Durvasa Muni's ashram. We had an ashram, but you'd have to cross over the Jamuna by bridge. And I would go there in the morning and pick flowers. And then, this was my first seva coming to the temple. People think, oh, you live in the temple, what do you do? Read and write, study and pray and meditate. But Bhakti's main activity is actually loving service. Prayer, meditation, and hearing chanting, these are primary limbs of Bhakti. But throughout the day, what are you going to do? If we look into Braj culture, they're always hearing and chanting Krishna's names, but according to their own moods and natures, they're also engaged in service. So this was the first service I got engaged in. I'm remembering because it's very sweet now, remembering Mathura. So now we have to come here. Yeah. Come here more often. Muscat mein aapka Muscat. Okay. Yeah, very good. I agree. But this was my first seva. It was very sweet. I would go with one other brahmachari from Holland, Manmohan Prabhu, like my elder brother, 10 years older than me. And we'd walk. It'd take like an hour walk, and then 1-2 hours pick flowers, and all these like fine, delicate flowers like jasmine
and this yellow flower, I don't know the Hindi name. Yeah, but yeah, like that. Champak, Beli, the long flower with the very delicate pink flower with long stem, grows on a big tree. So we'd pick so many types of flowers, and then when I'd come back, my seva was making garlands, and we would dress Thakurji with garlands twice a day. But my Shiksha Guru, he would make flower crowns for Krishna. He said Krishna doesn't wear a mukut. He doesn't wear like a heavy crown. He wears a pagadi, or if he has a crown, it will be flower crown. So then we would make garlands for Thakurji, but my Shiksha Guru, he would make the flower crowns every day for Radharani, for Krishna, for Mahaprabhu. And then we would dress them in the evening. And our Gurudev, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, he would come for the evening class. And first thing before he would sit down is he would go and he would see the deities of Radha Krishna. And he would be so happy seeing how much love was put into their service. And this is bhakti. The last few days we've been talking about how bhakti is an activity, but with a mood. And if the mood isn't there, then it's not really complete bhakti. It's the mood with which you do your kriya, the bhav. So we've been talking about this, how to enter into the moods of devotion, how to realize our moods of devotion for the Lord. So this has been a meditation. But one thing I want to stress is the power of actually even just doing the ritual. Even if you don't have so much mood. Like I can say, I was young, what mood did I have? Seva, jao, phool pick karo, mala banao, penao. But the power of this seva is avesh ho jata. You become absorbed in it. So I remember, this is an intimate thing for me, but it's factual. So every day I was doing this service. That means from like after Mangal Arati, we'd walk to the flower garden. You have to walk across the bridge, cross the Jamuna, Durvasa Rishi Ashram, so we have time for japa. And then pick flowers, come back, then for 5-6 hours make garlands, lunch break, then make garlands. Then you see the deities with the garlands, then you see Gurudev come see the deities. So your mind is all absorbed in flowers. And then when Gurudev would sit for class, I would see him, and the whole temple wasn't decorated every day. For big festivals, Janmashtami, then the whole temple is flowers, but it's a lot of expense and a lot of work. But anyhow, he would sit in class, and I would look around, and it would look like the whole temple was filled with flowers. Because this is the power of how the physical impacts the subtle, the mental. Like, for example, kids, you can play video games all day when you close your eyes. Kya chal raha hai video game mein? Kisi ko shoot karna ya kahan jana, driving karna, racing karna, apne aap swabhavik hota hai. The power of the physical, how it impacts the mental. So therefore, our Sanatana Dharma Sanskriti culture teaches us how to perform the rituals of devotion, even if the mood isn't there yet. It will gradually come, especially when you are with those who are true devotees, who really love God and are serving God with that intimate love. So anyhow, this is something we've been meditating on, Thakurji Seva. If we look at the history of deity worship in Indian culture, it's very tied together with the bhakti movement and the bhakti tradition. And one of the famous histories is the history of Lord Jagannath. And I want to tie it to a beautiful song that Jasmine Ben, Didi, elder sister. She's like elder sister. जो मंग होता है उनके बहुत भाई बहुत बहन होता है. Everyone is brother, everyone is sister, everyone is mata, everyone is pita. ठीक है? I told the story before ना. मेरा 5 बहनें बचपन से. I have 5 sisters. और गुरुदेव मुझे बोलता था तू एक पांडवी मतलब 5 बहन तुम्हारा पांडव नहीं पांडवी है. वो तू द्रौपदी कैसे बन गया? बचपन था. तो पांडव 6 था, 5 नहीं, तो एक और बहन हो गया. ठीक है? बड़ी बहन. So she showed me one very beautiful Guru Nanak song. Very beautiful. And it's describing how Guru Nanak is perceiving the arati of Lord Jagannath. So I want to tie that together with the history of Lord Jagannath, just connecting it to the beauty of deity worship. And how by the power of that deity worship, it naturally helps evoke a sentiment of love and devotion to God. And our Bhaktivinoda Thakur, one of our great saints, he would say without
learning to worship God in His form that He embodies. You can even say symbolically, however you want to see it. But He takes on this form as a medium for you to realize your relationship of love with Him. And so the last few days we've been talking about serving the deity, even in the mental state. But first you must serve in the physical state, otherwise you will not learn the culture, you will not learn cleanliness, you will not learn purity, you will not embody that. फिर मानसी सेवा नहीं हो सकता. First you have to do शरीर सेवा. तन, मन, वचन. Body, तन, फिर मन, फिर वचन है. Kirtan, Hari Katha. Okay? So Guru Nanak was seeing Lord Jagannath. And there's a famous verse that we say, Jiski jaise Bhagavan, Hari Murat dekaten tese. However, the soul has its individual nature, it will see God. Each soul is unique. Sabki drishti alag alag hoga. We were talking about this, right? Chor sabko chor dikhta. Kama ye jagat. So everyone sees God in their own way. So if we want to appreciate God, we should hear from the saints how they perceive God. And then we can understand what is the real nature of God. So Guru Nanak was saying, Bhagavan, main aapka kaise aarti karunga? How can I do your aarti? He was watching them do beautiful aarti for Lord Jagannath. And Lord Jagannath is the most mystical deity of the Lord. He's mystical. Why in the Upanishad it says, no hands, but his hands are everywhere. Jagannath has no hands. No legs, but his feet are everywhere. He's walking everywhere. In every soul he is residing. In every atom he is moving. If we look at Brahma Samhita, it says, Anda Koti. God is present in every atom. The force that is holding together the proton, the neutron, the nucleus, electrons. We say electrons are circumambulating like the jivas, mandali. They're doing circumambulation, prikrama. And inside is what? Shakti Shaktiman. Positive, negative forces together. Ultimately it is Shakti Shaktiman, coming from the highest potency and potent. So God is walking there, and Anantakoti Brahmanda, countless unlimited universes are manifesting from the pores of his body. This is Mahavishnu, Karanadakshay Vishnu. With his exhalation, there's paintings of Karanadakshay Vishnu. Countless universes are emanating from his pores. So this is the broad perspective. So Guru Nanak is saying, Bhagavan aapka aarti kaise karunga? How will I do your aarti? We are offering you one candle, one lamp, one diya. But all the stars in the universe, when they're doing their parikrama, they're offering you diya. Bhagavan aapka kaise aarti karunga? How will I do your aarti? If you're about a very sweet story, मतलब बहुत sweet कथा है. आपको deep or धूप, main दो आरती का item. Deep or धूप है, incense. Deep मतलब lamp, धूप, incense है, or fool. So then Guru Nanak is saying, Bhagavan, मैं आपका आरती कैसे करूँगा? How will I offer you धूप? When the earth enters the Vasanta Ritu, spring season, every blossoming flower is offering you धूप. भगवान मैं आपका आरती कैसे करूँगा? कितना सुंदर कीर्तन है. तो मैं बोला मैं इसका कीर्तन याद करूँगा. क्योंकि if you look all these different saints, different traditions, you can appreciate their love for God and their words of devotion to God. And then you can develop a true non-sectarian mood. And then this can enrich your own relationship with your own guru and your own parampara and your own Ishwar. There's one example of this also. Someone was doing a song for Govindaji. So Govindaji is the main original deity in Vrindavan, established by Rupa Goswami, actually revealed. A very sweet story. In the Mughal period, many of the deities were hidden to protect them. And so this one deity, one time Rupa Goswami, he was traveling, he would travel through the different holy places. And when he came to one place, he saw a Gomata, a cow, pouring her milk from her udders naturally, without a calf, on one mound of clay. And he thought, what is this? And then next day he came on Parikrama and he saw the same thing. Next day, same thing.
Okay, Jai Prabhuji. Pardon, sorry, Prabhuji ki Jai. Thank you. Hare Krishna. ठीक है. तो क्या हुआ? He went there and because the milk was pouring, so it became soft soil. He opened it and he saw head. Then he came more, face. गोविंद जी है, बहुत सुंदर. अपने इष्ट देव को मूर्ति निकाला तो उनको प्रतिष्ठा किया. So he established Govinda Ji. Beautiful temple. For this Govinda Ji, one of the kings built a temple. First, he was a Baba. He didn't have any money. So he would worship. He said, okay, 1 stone, 2 stones. And anyhow, here's your altar. Like Fusca roof, straw roof. But he had so much bhakti bhav. Krishna bola, to main apna mandir banaunga. तू नहीं कर सकता. You cannot do it. You don't have any money. मैं अपना बनाऊंगा, अपना भक्त को बुलाऊंगा. So he called one Jaipur king. The Jaipur king built a 7-story temple. Govinda Ji Mandir hai. On the top of that 7-story temple, every evening they would light 50 or 100 or more kilos of ghee as the diya. So on the top of, if you've gone to Vrindavan, it's a beautiful temple, red stone. And it's still like an amazing temple. Kam se kam, like 30, 40 feet high inside, maybe 40 feet, very big temple. But it used to be 7 stories. And on the top of the 7 stories, every night they would have like a kund of ghee. And iste diya jalata tha, Bhagavan ke liye. You imagine how beautiful. It was so beautiful that the Muslim king in Agra became envious. And he sent his Aurangzeb at the time. He was famous for smashing temples. Wreck it. He was smashing temples. So he came and he smashed 5 stories. He said, "Hamara masjid se upar nahi, like higher nahi hona chahiye." And itna bada deep jalata, wo Agra se dekh sakta tha every night. So naraz ho gaya. तो तोड़ने लग गया. When he came down to like 2 stories, उनका सपने में भगवान सपने में आया. वो बोला, हे मेरा मंदिर मत तोड़ो, मैं तेरा वंश को तोड़ दूंगा. Don't disturb my temple. ठीक है, तो इतना बच गया. But this temple, Govinda Ji, one day a Mayavadi came. That means they don't believe God has form. They don't believe God is a person. They don't believe that you can have a relationship with God. They believe that we are all God and it's all like impersonal, Brahma Jyoti. But he was doing kirtan to Govinda Ji, very sweet kirtan. And Rupa Goswami, seeing that he was, Advaitavadiya, Brahmavadiya, Mayavadiya, he said, please Guruji, hum to Vaishnav hai, bhakta hai, Krishna ka bhakta hai, hum unka nitya swarup mante hai, sab kuch. Please. तो फिर गोविंद जी सपने में आया. कितने सुंदर कीर्तन कर रहे थे, क्यों निकल दिया? बुलाओ, कीर्तन करवाओ. क्या सोच रहे जात वाद का? जो मेरे कीर्तन कर रहे करने दो, उनका लाभ कैसे होगा? How will you get benefit? तो भगवान, अगर भगवान होते तो सबके लिए होते. ठीक है? God is one, then God is for all. चाहे Christian, चाहे Muslim, चाहे Buddhist, चाहे वैष्णव, चाहे कोई भी हो. भारती के लिए नहीं है, मतलब अरब के लिए नहीं है, और विदेशी के लिए नहीं है. ये फिर सनातन नहीं किया जाता. क्योंकि all these titles and designations are temporary. Soul is eternal. One life we're Muslim, one life we're Hindu, one life we're Christian, one life we're Judas, one life we're Gnostic, one life we're Astic. But how can we come close to God? Then we have this process of aradhana, loving devotion, aradhana. And the main process of this aradhana, you have to focus on something. So we focus on Krishna's name, japa. But even the japa has to have an ishta, an object of devotion. Like, kiske liye jap kar rahe? Who are you chanting for? Otherwise, we're chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. But yaad hota, Are Ram, matlab, और किसी का, और किसी का, किसी का, और किसी का. Hare Krishna नहीं है, और किसी का है. Hare Krishna, और किसी का, और किसी का है. We're thinking of something else, someone else. Mind is fixed somewhere. So that's why we worship Shiv Vigraha. This is our Sanatana Dharma culture. Then, naturally,
what rati we have in our heart. It said the heart has rati. That means natural love, natural attraction. And you cannot stop it. Different traditions, Buddhists say, try to get rid of it, annihilate it. Annihilation of the self. Why? Because of this rati, we also receive so much suffering. Rati, if misplaced, misdirected, is very powerful and it can form a very tight bond. And if that bondage is with those in lower frequencies, lower chakras, tamagun, and so forth, then we are bound to tamagun. Then we are bound to rajagun. Then we are bound to samsara. Only because of this misplaced rati, attachment or attraction. But Vaishnav culture or Bhakti culture teaches us that that rati is inherent, essential characteristics of ourself. So we can annihilate the self and try to get rid of it that way. But I know those who have followed that path. I know those who have followed that path very far and almost come to the conclusion of it and seen the conclusion of the path of self-annihilation in my own life. This our dear Kalindi. आप जैसे बुद्धिस्ट ही है पक्का और इतना अनुभव के साथ मतलब अनुभव नहीं अनुभव एकदम रियलाइज हो चुकी है फिर ये अंधेरा जब देखा और सेल्फ एनाइलेशन जब देखा बस डर गया नहीं ऐसे नहीं करना आत्महत्या बोलते हैं ना सेल्फ एनाइलेशन इज आत्मघाती है सेल्फ सुसाइड है So there's another process. One process is, okay, material jadrati is poison, dangerous, causing pain and suffering. Root cause of suffering, attachment है. तो एक तरफ तो खत्म करना, get rid of it. दूसरी तरफ जोड़ना, जुगल जोड़ी है. Harmonize करके बस भगवान को अर्पित करना. उसका नाम आरती. When you offer your rati to Bhagavan, वही आरती. तो गुरु नानक बोल रहे ना भगवान में आपका आरती कैसे करूंगा भगवान इतना बड़े और पूरा पृथ्वी धूप लगा रही है तारों का मंडली आरती कर रही दीप मैं क्या कर सकता ठीक है बट द सीक्रेट इज पृथ्वी है या तारों स्टार्स दे आर प्रकृति है They are a manifestation of the divine energy of the goddess into this material existence. So they are called Jad Prakriti, material nature, material energy. Atma is say higher hai. The soul is higher than Prakriti. समझ गए? Soul is a higher substance. क्यों? क्या तत्व है? सबसे मुझे प्रमाण के साथ बोलना चाहिए. गीता में बोला भूमिर आपो नलो वायु कम मनो बुद्धि रे बचा जो 5 material elements है भगवान को अर्पित करना चाहिए भूमि तो दीप लगाया धूप लगाया भूमि और आपो पानी तो भगवान को कौनशल में जैसे लक्ष्मी का स्वरूप लक्ष्मी देवी कहाँ समुद्र की बेटी है शी इज वरुण देव डॉटर है तो लक्ष्मी देवी कौन स्वरूप लक्ष्मी का अनुगत्य में भगवान की सेवा करना This is Gere Tattva, deep, confidential topic of Radha Dasyam, ya Lakshmi, ya Sita. Why we have to go Anugatya mein? Bhagavan se Vina Anugatya pahunch nahi sakta. Without guidance or shelter, we cannot reach God. This is our Sanskriti Vedic culture. So when we offer water to God, how do we do it? In the shelter of, in the guidance of the vessel of love for God, which is Shakti. So conch shell is Lakshmi Devi, conch shell is vessel. Radharani, one expansion is Lakshmi, one expansion is Sita, Draupadi hai, Kunti hai, सब जितना शक्ति का अवतार है राधारानी से आती है ये वैदिक प्रमाण है उमा राम सत्य सची चंद्र रुक्मिणी राधा अवतार सब अमनाय वाणी अमनाय प्रमाण है But when we want to offer that apo, bhumir apo, when we want to offer water to God without taking shelter of Shakti है नहीं कर सकती है क्योंकि शक्ति प्रेम का आश्रय है The goddess is the vessel of love for God. Shakti is the vessel of love for Shaktiman. ठीक है तो भूमिर आपो फिर नलो वायु तो हम चामर लगाते भगवान को या मोर पंख से भगवान को I
ये गीता का श्लोक है, भूमिर आपो नालो वायु, नालो मतलब फायर है, ठीक है, तो फायर से दीप, फिर वायु चामरा पंख मोर पंख, भूमिर आपो नालो वायु कम मनो बुद्धि रे बच्चा। फिर ये केवल नहीं, ये 5 वस्तु है, 5 एलिमेंट्स है, इसके ऊपर कम मनो बुद्धि रे बच्चा, ये तीनों चीज को भी अर्पण करना चाहिए। आरती फुल होगा आरती, तो कम मनो बुद्धि रे बच्चा, कम मनो बुद्धि कैसे अर्पण होगा? जैसे शंख का ध्वनि होता है, साउंड, इसलिए बैठिए आराम से, ठीक है। तो हाउ डू वी ऑफर द माइंड, द इंटेलिजेंस एंड द ईगो? These are also material elements. Do we offer it by sound first? Shravanam. That's why first limb of Navada Bhakti, 9 limbs of Bhakti, first limb is hearing. Because hearing is the subtle element that is closely connected to the higher realm. And we have one example why hearing is very important. जैसे अभी हम श्रवण कर रहे, you are hearing, I am also hearing. क्या बोल रहे हैं? क्या आगे बोलेगा? कुछ जानता नहीं है, तो I am also hearing. मेरे को पता नहीं आगे क्या बोलने वाला. But so also hearing. So they say one example is there. आम की, mango. आम को आप खा सकते हैं और स्वाद कर सकते हैं. You can taste it. आम को आप स्मेल कर सकते हैं, फ्रेग्रेंस आप स्मेल कर सकते हैं. आम को आप फील कर सकते हैं, कैसे आम है. खा भी सकता है, किंतु हीरिंग कर सकता है. हीरिंग बहुत सटल है. तो हीरिंग मतलब साउंड की द्वारा से हम माइंड, इंटेलिजेंस एंड ईगो भगवान को आरती लगा सकता है. इसलिए संकटवाणी, कीर्तन, हरि कथा, तो ये ठीक है, 8 चीज को आरती लगा दिया. किंतु गुरु नानक क्या बोला? ये केवल 8 चीजों से आरती लगाना not sufficient, because all the stars are doing arti. The earth herself is doing dhoop. All the fragrance of the earth is like incense, the smell, fragrance of every flower blooming on earth. Not only the flowers, ambergris, then keshar, saffron, champak का जितना सुगंध है. मैं क्या लगा सकता हूँ आपको एक दीप, आपको एक धूप, किंतु मैं क्या दे सकता अपना आत्मा को. I can give my own soul. ठीक है कि नहीं? हम बोलते ना, प्रेम प्रदीप आरती शोभा. जब हम आरती कर रहे तो मैं अपना सोल एक मूड के साथ आपको अर्पण कर सकता हूं. उसका नाम आरती. ठीक बात है कि नहीं? Then this is आरती. और कृष्णा ये चीज को स्वीकार लेता है, सोल को नहीं है. सोल स्वतंत्र है. God gives the soul freedom. ठीक है? तो जब हम अपना आत्म भगवान को समर्पण करते तो भगवान चोरी नहीं करते. जैसे कृष्ण लीला में अनुकूल हुआ. You know the story of Giriraj Govardhan. Krishna lifted Giriraj Govardhan. तो ब्रजवासी एक कुंड खीर बनाया, एक हिल हलवा बनाया, ठीक है, और समोसा, कचौड़ी, लड्डू, कितना हजारों प्रकार बनाया. ठीक है, इंटरमिशन है, दे दो, इंटरमिशन हो गया. ठीक है, इंटरमिशन. ठीक है, नैपकिन इंटरमिशन है, ले लो. ठीक है, आ गया. माता जी कौन जाना है आपको? आना, आ गया. ठीक है, वेरी नाइस. भारत प्रभु कमिंग. वेरी नाइस. ओके, ठीक है. तो गुरु नानक का मतलब है हम अपना आत्मा को भगवान समर्पण कर सकते हैं. उसका नाम आत्मा समर्पणा. भक्ति का 9 लिम है, 9 लिम्स ऑफ भक्ति. पहले श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साक्यम. लास्ट आत्मनिवेदनम. अपना आत्मा को समर्पण कर सकता. और लास्ट इज फर्स्ट. एंड हाउ टू गेट टू लास्ट इज फर्स्ट. श्रवण से आत्मा मतलब पहले सुनना पड़ेगा कि ऐसी चीज होता. अदरवाइज इफ यू डोंट नो एनीथिंग, स्कूल कभी नहीं गए ना, ABC नहीं पढ़ा,
तो क्या शब्द बनाएंगे, क्या बुक्स पढ़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते। तो अल्फाबेट पहले, किंतु मूल तत्व आत्मनिवेदनम, अपना आत्मा परमात्मा को देना, समर्पण। बट व्हेन यू ऑफर्ड हिम, अनुकूट का एग्जाम्पल दिया मैंने, है कि नहीं? तो अनुकूट एग्जाम्पल, भगवान कृष्ण को सब लगाया, और भगवान कृष्ण दिखाया, मैं सब कुछ खाया, फिर बोला और दो। If you know the Govardhan story, you'll understand I'm giving only general story, because otherwise लंबी कथा हो जाएगा। तो गिरिराज जी ने क्या बोला, अब स्टोरी सुना। तो कृष्ण एक बड़ा रूप में आया, लाइक 4 हाथ और 100 feet tall, और पूरा कुंड का खीर खाया, फिर पूरा हिल का हलवा खाया, सब कुछ खाया, फिर बोलो और दो, अनयोर, बहुत फेमस है, अनयोर, मुझे और दो, और दो। तो ब्रजवासी पूछा क्या और दे सकता है, व्हाट मोर वी हैव। बस इंटरमिशन। हेलो। So Maharaj ji, it's हाँ। not easy to आत्मसमर्पण. How No to problem. do that? वो तो आने दो, का process है. जय हो माता जी। बस जैसे आप अपने बच्चे के लिए अपना समर्पण करते, प्रभु के लिए सेवा के द्वारा से होता। जब आप बच्चे का सेवा करती है, Sometimes I feel so helpless to. ये हेल्पलेसनेस भगवान की कृपा है। क्योंकि देखो, बिना हेल्पलेसनेस आपका रोना नहीं आती है। Because आपने बताया ना कि गुरुदेव भगवान कह रहे इतने तारे आरती कर रहे. वो जय प्रभु जी, ठीक है, भारत प्रभु जी की जय। हम तो कुछ भी नहीं है ना प्रभु. बैठिए प्रभु जी, आप आराम से बैठिए, नहीं बैठो, नहीं नहीं, ठीक है, आप आगे बैठो, उनको आगे बैठना, ठीक है, आराम से, ठीक है, मैं बोल दूंगा, ठीक है। भगवान ये चाहते, बस आंख में एक आंसू आया, भगवान खुश है। एक स्टोरी बताओ बीच का। तो फर्स्ट आई फिनिश दिस पॉइंट, ठीक है। तो हम बोल रहे थे कि प्रभु जी आए, प्रभु जी धन्यवाद। तो वी आर टेलिंग वन एग्जाम्पल। जब ब्रजवासी, when the Brajbasis were offering bhog to Giriraj, Giriraj ate everything है, फिर बोला आनी और कुछ दो। मतलब है जब हम आरती करते, धूप, दीप, फूल, चामरा, आपवा, पानी से, तो दिस इज नॉट इनफ। भूमि और आपो न लो, वायु कम मनो, ये चारों 5 चीज और 2-3 और चीज, 8 चीज लगाया भगवान को। Mostly आरती we do 5 things. भूमि और आपो न लो वायु, भूमि और आपो न लो वायु कम, ठीक है। मनो बुद्धि रेव च अहंकार, ठीक है। There's 5 things: earth, water, fire, air, ether. In the sense of earth for fragrance, air for feel, deep for sight. We offer all these things to God. But फिर बोलते हैं आनी और कुछ देना, give me something more. तो ये more क्या होता है? फिर गीता का next verse, भूमि आपो न लो वायु का next verse क्या है? आपको पता प्रभु जी, भारत प्रभु? नहीं, अपारेयम इतस्तन्यम प्रकृति मिति में परम जीव भूत महाबाहो यायतम धैर्यते जगत। ये 5 प्रकृति से ऊपर चीज आत्मा है। ये आत्मा का ज्योति भगवान को अर्पण करना। जब हम आरती कर रहे, बस भगवान मैं आपका आरती करता हूँ, ठीक है। दिस इज मोर देन द स्टार्स, मोर देन द अर्थ। ये ध्यान, मतलब इसको घुसा देना आपका हार्ट में, ठीक है। क्योंकि मोर देन द स्टार्स, मोर देन द अर्थ इज द सोल। If you study Vedanta, you study any Shastra, this is there. आत्मा परमात्मा का सबसे पुराना रिश्ता है। और जब पृथ्वी से पहले आत्मा परमात्मा थे, और पृथ्वी के बाद आत्मा परमात्मा रहेगा। तो मेन चीज़, सबसे हाईएस्ट चीज़ है भगवान है। और भगवान का संतान, भगवान का वेद का एक श्लोक है, अमृतस्य पुत्रः। दिस इज वैदिक श्लोक। एक ऋषि के पास एक शिष्य आया और गुरु से पूछा, मैं क्या करूँ, क्या साधना करूँ, क्या मेरा प्रयोजन है? तो बोला, तू अमृतस्य पुत्र है,
अमृत स्वरूप जो भगवान है, इमोर्टल आनंद स्वरूप जो भगवान है, आनंदमय अभ्यास जो भगवान, वेदांत सूत्र 7th एफोरिज्म है, आनंदमय अभ्यास। ये जो भगवान अब उनका पार्ट एंड पार्सल है। इन गीता में ये इसलिए बोला ममाय वंशो जीवलोके, जीव मेरा अंश है। तो ये जीव अब भगवान को अर्पण करना सीखना। और कैसे सीखना, कैसे अर्पण करना? तो गिरिराज ने बोला आनी और। तो फिर कृष्ण ने क्या बोला? भगवान कृष्ण इज टीचिंग, कृष्ण इज ऑल्सो गुरु, वंदे कृष्ण जगत गुरु। तो कृष्ण showed Vishnu form eating everything in Govardhan. But Krishna himself then said, okay भगवान, हम आपको एक तुलसी पत्ता देंगे। They gave one tulsi leaf. गिरिराज खाया, बोला तृप्त उसमें है, satisfied है। But one secret there. तुलसी के साथ आत्मसमर्पण किया। चांदीदास के कीर्तन है हमारा परंपरा में, क्या बोलते? हे माधव, हे माधव, माधव हे बहुत मिनती करी। तो भगवान मैं आपका बहुत प्रार्थना किया, आई हैव सॉन्ग सो मेनी सॉन्ग्स फॉर यू। क्या बोला फिर? ये सब बोलने के बाद मेरा क्या स्वार्थ है? व्हाट इज माई प्रेयर टू यू? क्या बोला? देई तुलसी तिला देह समार्पिनु, धया जानी नाचदा बिमोय, धया जानी नाचदा बिमोय। तो ही इज राइटिंग, भगवान तुलसी के साथ मैं अपने को समर्पण किया। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मी का आश्रय से पानी लगाया, कॉन्श। ठीक है, फॉलोइंग। जय हरि बोल जी। बैठिए सोफा में, नेक्स्ट इंटरमिशन है, बैठिए आराम से। माता जी भी आया। जय। Your brothers Ambarish. You are Risha. हाँ, remember है ना? चलो, दीदी भी आया। पूर्व शक्ति माता जी की जाए। ठीक है। आए, राधे राधे, हरे कृष्णा। ठीक है, ठीक है, आराम से बैठिए। ठीक है, ठीक है। प्रभु जी, नितिन में आगे बैठिए। देखो, आपको आसन लगाया। और माता जी आप काउच में बैठिए। ठीक है, सुदेवी माता जी। ठीक है, काउच में बैठना, नहीं तो यहाँ बैठो। ठीक है, ठीक है, मालव ओके। ठीक है, ओके, आगे चल रहे। We're talking about Arati. Today class only Arati. Okay, so when we offer the conch shell water, when we offer water to Krishna Didi or Vishnu Didi or Ram Didi, we use conch shell. Conch shell is Lakshmi Swarupe, meaning we have to take shelter of Shakti to offer any thing to God. अपना आत्मसमर्पण किसकी अनुगत्य में करेंगे? तुलसी देवी है। To offer their own soul, we take shelter of तुलसी माता है। इसलिए जब हम हरि नाम करते तुलसी माला के साथ, father's name Tulsi, mother's name Mala. Without Tulsi Mala, you can't. Tulsi Mala is like we say, अरे तुलसी देवी आपका चरण पकड़ कर हम भगवान का याद करते हैं। So we chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram. तुलसी माला के साथ सबका तुलसी माला है, किसका नहीं? देखो तुलसी माला, तुलसी माला, तुलसी माला, no problem, sit आराम से। सबका तुलसी माला है। और कंठी किसकी है? तुलसी माला है। ठीक है, तिलक क्या है? तुलसी का है। सब तुलसी है। Tilak is Tulsi sign for Vaishnava. Any other line like we have Trichpunda, this is Shiva line. But for Vaishnava, Tulsi है। ये तुलसी है और दोनों लाइन क्या है? राधा कृष्ण। और बीच में क्या है? लीला स्थली है, मस्तक, third eye. Only राधा कृष्ण ध्यान होना चाहिए। और किसकी अनुगत्य से? तुलसी देवी है। ठीक है, तो then he is singing the song. बहुत अमीनाती कोरी था। फिर बोला दे तुलसी तिला देह समर्पिनु, धोया जानी नाच दो बिमोय। I have offered myself to you, please don't forsake me. क्यों बोला ऐसे forsaking मत करो? क्योंकि जब गिरिराज ने सब खाया, फिर वापसी सब दे दिया। लो, तेरा सब खाना है, प्रसाद लो। Not one grain less. If you hear the story of Giriraj, not one grain less, बल्कि ज्यादा था। क्या बोला गिरिराज ने? अरे आप बोला तेरे घर के सब खाली है, बढ़ गया सब।
जाके देखा, ओए होए स्टोर हाउस फुल, बासमती राइस, गोविंद भोग, घी, साकर, मधु, सब कुछ बढ़ गया, तेल। क्या लैसे तेरा? भगवान को आपने को दे दिया, आपका कमी हो गया। भगवान से जोड़ गया तो सब कुछ तेरे पास हो गया। हमारा एक उदाहरण स्वयं प्रभुपाद की है। जब संन्यास ले लिया तो घर छोड़ दिया, बीवी छोड़ दिया, तो बच्चा छोड़ दिया, और फिर बिजनेस खत्म हुआ, दूसरा बिजनेस खत्म हुआ, मथुरा में आया। पहले मथुरा आया, वृंदावन नहीं आया। मतलब जब घर छोड़ दिया तो विश्राम घाट के पास एक घाट था, उसका क्या नाम है भूल गया ना, ऐसे नाम है। ही वाज स्टेइंग देयर। तो हमारे गुरुजी श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज सुना, अरे मेरा ज्येष्ठ भ्राता, माय एल्डर ब्रदर आया मथुरा में, उनका मत केशव जी गौड़िया मत जाकर मिला, आ जाओ आ जाओ आ जाओ जाओ। अरे कौन, क्या, कहाँ रह रहा है? झुपड़ी झोपड़ी में, पैसा नहीं, घर नहीं, अच्छा, बहुत पुरानी बात है। तो स्वामी प्रभुपाद के जो संन्यास गुरु भक्तिवेदांत केशव गोस्वामी, उनके मत केशव जी को बुलाया, वहाँ रहा, वहाँ एडिटर इन चीफ बनाया, बहुत सारी स्टोरीज है। बात है कि सब कुछ छोड़ दिया तो क्या हुआ? जब संन्यास दिया, मतलब इन द बिगिनिंग जबरदस्ती संन्यास लगाया, जल्दी संन्यास लो। जब परम गुरुदेव अप्रकट हुआ, when our guru's guru left this world, तो स्वामी प्रभुपाद was in Seattle. He wrote one letter of condolences. वो एक श्लोक लिख दिया, मतलब नारायण महाराज के लिए बोला, आपका गुरु जो परम भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी मेरे को जबरदस्ती संन्यास दिया, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी said for सनातन गोस्वामी, वैराग्य युग भक्ति रसम प्रयत्न निरपायमम। दिस वेरी ब्यूटीफुल वर्स। तो बात है यही है, जब भगवान को अपना आत्मसमर्पण किया, जैसे स्वामी प्रभुपाद इज डन आत्मसमर्पण, ही इज लिबरेटेड सोल, बट ही स्टिल शोइंग अस व्हेन ही डिड आत्मसमर्पण, तो क्या हानि हुआ? व्हाट ही लॉस्ट? कुछ लॉस हुआ? बल्कि सब कुछ मिल गया। अभी कितना मंदिर है, अभी कितना गौशाला है, अभी कितना फार्म कम्युनिटी है, कितना आश्रम है, कितना भक्त लोग है, आगे कितना होगा? ये मोसेस की तरह हो गया प्रभुपाद, मोसेस के बाप, मतलब सब उनके बच्चा हो गया। हमारा शिक्षक गुरु जो प्रेमानंद बोलते, अरे आप विदेश प्रचार करने जाएंगे, याद करना प्रभुपाद विदेश के इष्ट देव है। इष्ट है, मतलब पेट्रियार्क है, फैमिली हेड, जो हमको सिखाया भगवान कौन है, कृष्ण कौन है, जगन्नाथ कौन है। ठीक है, तो ना वापसी स्टोरी में आ गया। When we offer ourselves to God, कुछ हानि नहीं हुआ। गिरिराज सब कुछ डबल दे दिया, किंतु जब डबल दे दिया तो प्रसाद हो गया। One Bhagavad story example, and I'm not telling the whole story because we know it, but just for उदाहरण example, क्या सुदामा विप्र खुश नहीं था। उनका पत्नी बोला, जाओ तुम्हारा भाई, जो तुम्हारा बचपन का फ्रेंड, जो एक स्कूल में पढ़ा, संदीपानी मुनि का स्कूल, सुदामा was ब्राह्मण, तो बाद में शादी किया, पैसा नहीं था, घर नहीं था, और वो भी नालायक का, काम नहीं करते थे। वाइफ बोलती थी, अरे तू काम कर कम से कम, तू सबसे समय जॉब करते रहते, क्या लाभ है, भगवान कुछ देते आपको, तो जाओ भगवान से मांगो। कितना बड़ा 16,000 रानी से शादी किया, राजकुमारी से शादी किया, कितना बड़ा महल है द्वारका, मांगो कुछ। But he didn't want to ask. Anyhow, I'm not telling the whole story. But he didn't even ask God for anything. उनका wife gave him some broken rice. वो भी पड़ोसी के घर से लिया। You know the story. His wife said, घर में कुछ है नहीं। देखो, हमारा घर में कुछ नहीं, इसलिए हमारा अतिथि भी नहीं आता, छुआ भी नहीं आता। तो पड़ोसी से ये ब्रोकन चावल दिया ना, सबसे लास्ट वाला चावल जो बिकता भी नहीं बाजार में, सबसे मतलब नालायक चावल है, बैकवर्ड क्लास राइस। तो थोड़ा से लिया, और उनका बैग फैग पार्सल सूटकेस ट्रॉली नहीं था, तो उनका इतना दुबला पतला, he put it in his like sunken pit of his armpit in one कपड़ा, बस ऐसे चल दिया द्वारका। कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, बस आत्मसमर्पण किया। तो जब लौट के आ रहे थे घर नेक्स्ट डे, but Krishna didn't give him anything external there, but प्रीति दिया बहुत। If you hear the story, आने से पहले रुक्मिणी को बोला, अरे मेरा बहुत dear friend आ रहे, द्वारका से 7th gate जब अंदर आ रहे, उनको चामड़ा दुलाना, अपना सब सहेली के साथ है, और जब आ रहे घर में तो उनका चरण धोना। सुदामा का
आंसू आ रहे थे. He has felt so much love of God. How he is serving me. कभी कभी मेरा भी थोड़ा स्मॉल एक्सपीरियंस है. हमारे गुरु लोग इतने बड़े होते, भगवान का नित्य परिषद होते, हमारा सेवा कैसे करते? बच्चे को, माँ बच्चे को जैसे सेवा करती ना, पाप, तो गुरु लोग शिष्य को सेवा करते, शिष्य गुरु का सेवा नहीं करते. गुरु इज सर्विंग डिसाइपल्स, सबको पालन पोषण करते. गिरिराज जैसे सबको सर्व. गिरिराज क्यों गिरिराज नाम बन गया? हंतायम अद्रि अबला हरिदास वर्यो यद्राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानन तनोति सा गो. जो सबको पालन करते वो सबसे बड़े होते. हरिदास वर्या, he became the श्रेष्ठ, greatest devotee of the Lord because he is serving everyone. ठीक है. सुदामा को प्रीति दिया, लव, वापसी भेज दिया. देखो मेरा द्वारका से बड़ा महाल हो गया. क्या हानि हुआ अपना को देना का? We had no loss. But जोड़ गया भगवान से, जो सब कुछ का मालिक उनसे जोड़ गया. ये आत्मसमर्पण का तत्पर्य है. But कभी कभी भक्त लोग के पास ज़्यादा कुछ नहीं है तो हम सोचते भगवान से ले लिया, क्यों नहीं है? माया में फंस जाएंगे तो मेरे से हट गए, मुझसे हट जाएंगे, माया में फंस जाएंगे तो क्या लाभ हुआ सब कुछ देने से? पहले आपको युधिष्ठिर जैसे बनना पड़ेगा. First you have to be like युधिष्ठिर, फिर सब कुछ दे सकता. जो चला सकता और भगवान without losing भगवान. You look at the example of Yudhishthira in Mahabharata. He asked Krishna one time. It's a famous story. Krishna, आपका सब भक्त गरीब है, और महादेव का सब भक्त rich है, और महादेव was living in cremation ground, Sangsan Ghat, smearing ash of dead bodies, ash on his body. उनके सब भक्त बहुत अमीर है, तेरे भक्त सब गरीब है. आपके लिए एक प्रार्थना है, मेरे को बहुत धनी बना देना, make me very wealthy. फिर सब लोग बोलेंगे कृष्ण के भक्त अच्छा है. अर्जुन asked, तो कृष्ण बोला हाँ अच्छा बात है. तो कितना सब कुछ दे दिया. महाभारत के बाद सब कुछ दुर्योधन के हाथ में था. कृष्ण का अपना यादव सेना दुर्योधन के साइड में. तू ले. कृष्ण बोला मैं I will not take a weapon, अस्त्र ना दे दो. I won't take a weapon. बस मैं केवल गाइडिंग करूंगा. भगवान को गाइड बनाया तो फिर मैं से अपने आप निकल जाएगा. ठीक है, तो जीत गया, सब कुछ मिल गया. फिर कुछ साल के बाद जब कृष्ण अंतर्ध्यान हुआ तो आप महाभारत खोल के देखना क्या किया. You open the Mahabharata, see what Yudhishthira did. किसी से बात नहीं किया, द्रौपदी से ना बात नहीं किया, मैं गार्ड छोड़ रहा हूँ, त्यागी कर रहा हूँ. अपना राज वेश निकल दिया, मुकुट निकल दिया, भिखारी के वेश पहना दिया, जो पुराना वस्त्र ले लिया, बस निकल गया हिमालय. अपना भाई को भी नहीं बोला. सब लोग देख रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है. युधिष्ठिर निकल गया तो जबरदस्ती परीक्षित महाराज को राजा बना दिया. बच्चा था. परीक्षित महाराज, तू राजा हो गया, हम जा रहे. क्या कर सकते? इमेजिन धर्म संकट. बच्चे का बाप सब जा रहे संन्यास लेकर. वो बोला तू राजा, सब दुनिया का चलाओ, देख स्वाद, एंजॉय. ठीक है. युधिष्ठिर लेफ्ट एवरीथिंग, बस निकल गया बाण हिमालय की तरफ. और पीछे पीछे भीमा, अर्जुना, नकुल, सहदेव, फिर द्रौपदी, सब निकल गया. कुंती किसके साथ? धृतराष्ट्र और क्या गंधारी के साथ. बस निकल गया सब तपस्या. नो मोह. सब कुछ होने पर भी मोह नहीं रखना. दिस इज क्या गीता में बोलते, योगा कर्माशु कौशलम, द आर्ट ऑफ योगा. सब कुछ संभालना धर्म के साथ, किसी में मोह नहीं. भगवान नहीं तो हम भी इसमें नहीं है. देन भगवान हमको कुछ देंगे. जैसे स्वामी प्रभुपाद को कितने दिया. प्रभुपाद का मोह था, बस निकल गया अपना दाम. कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण के पास वापसी चला गया. ठीक है. तो देहि तुलसी दीह देह समर्पिनो. आपने को भगवान को समर्पण करना तुलसी देवी का शरणागति से. ठीक शब्द तुलसी देवी. क्यों? तुलसी देवी भक्ति स्वरूपी नहीं है. तुलसी देवी इज भक्ति फॉर्म इन दिस वर्ल्ड. भगवान कृष्ण जब आया तुलसी देवी को लेकर आया. गिरिराज, जमुना, तो भगवान निकल के बोले गिरिराज तू रहना, जमुना तू रहना, गंगा देवी और तुलसी देवी है. किंतु गंगा जी जाने के लिए आपको गंगा जाना पड़ेगा, जमुना जाना पड़ेगा. ठीक है, गिरिराज जाना पड़ेगा. तुलसी देवी बहुत कृपालु है, वेरी मर्सफुल, हमारा साथ सब समय रहेगी है. ठीक है. अभी कितना टाइम है? फिनिश्ड. अभी
अभी कथा शुरू नहीं हुआ, ये केवल इंट्रोडक्शन है, ठीक है। देहि तुलसी तिल देहा समर्पी धोय जानी नाच, नेक्स्ट लाइन है, तू हु जगन्नाथ जगते कहासी, जग बाहिर नाही मुई चार, जग बाहिर नाही मुई चार, हे माधव हे बहुत मिनती करी तो। वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग है, ठीक है, very beautiful song, you can read it. So I want to finish with the story of Jagannath, and जो असली कथा मैं पहुंच नहीं पाया, कोई बात नहीं, next time you must get, but main कथा I didn't approach yet, but केवल रास्ते को सजाना टाइम लगता, ठीक है। Before Jagannath manifested as Jagannath, he was Nila Madhav. Or Nila Madhav, very ancient historical deity, he was very hidden. Gopan Roop, Gopi Roop, Gopa Roop. No one knew Nila Madhav hota kya hai. If you look at the story of the tradition before Jagannath, it's a very fascinating story. Jagannath before Nila Madhav, he was a tribal deity. And he was hidden in the forests of Odisha. Odisha, these different areas, right? Maintained by the tribal king. But kya hua? The king of Odisha at the time, main king, Purushottam Jana, right? Before. याद नहीं है, इंद्रदुम्न महाराज, हाँ इंद्रदुम्न महाराज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये आई एम कमिंग टू द एसेंस नाउ, ठीक है। इंद्रदुम्न महाराज भगवान को बहुत प्रार्थना करते थे, भगवान मैं आपको कैसे, हाउ विल आई सी यू गॉड, हाउ विल आई रियलाइज यू गॉड, हाउ विल आई लव यू गॉड, आपका स्वरूप हम दिखते नहीं है, भगवान आपको कैसे पहचान, भगवान आपसे प्रेम, हाउ विल आई सी यू, लव यू। तो ये बहुत सोच रहा था, और ही वाज आस्किंग ऑल हिज मिनिस्टर्स। फिर प्रार्थना, ही वाज प्रेइंग वंदनम, 6 लिम ऑफ भक्ति वंदनम। सपने में आए क्या बात, एक मूर्ति, उनका सपने में एक मूर्ति का दर्शन, पहले बार उनको, you know, Indian history we didn't always have मूर्ति पूजा, but hidden some places, it was there. तो क्या किया, सपने में जब भगवान का दर्शन किया, इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है, जैसे हम कीर्तन करते ना, जय जय, अभी आने वाला केशव व्रत में 30 days के लिए हम ये कीर्तन करते, जय जय सुंदर नंद कुमार, जय जय सुंदर नंद कुमार। Very beautiful song है। He saw this form of Nanda Kumar Krishna. Jagannath no hands, no feet, but Krishna Sagun Brahma, hands, feet, very sweet smile, बहुत सुंदर आंख, बस उनका हार्ट ले लिया है। Automatic आरती है। Highest आरती is love, क्योंकि रति is love, आरती is love. You offer, main thing I want to say ना, we offer आत्म समर्पण, भगवान वापसी देता है, तुम्हारा आत्मा तुम ले लो, तुम स्वतंत्र हो, मेरा जीव है, मैं भी स्वतंत्र, तू भी स्वतंत्र है। बट जब हम आत्म समर्पण, तुलसी के साथ क्यों, सुगंध है, फ्रेग्रेंस है तुलसी का, ये फ्रेग्रेंस क्या, अपना मूड, अपना भाव, ये भगवान खा लेता है। God relishes your mood of love. Vidurani Gar you look, Draupadi you look, any great devotee, Tulsidas, yeah, जितना भी अच्छा मीराबाई, greatest saints, God is relishing their mood of love. वो खा लेता है। रसोई बनाया, इसका कितना प्यारे से बनाया, कितना स्वाद लगाया, कितना अच्छा तरीके से बनाया, ये मूड ले लेता है, ठीक है। ये सोल के साथ प्रॉपर्टी है, हमारा निजी प्रॉपर्टी, अपना मूड, अपना लव एंड डिवोशन है। जैसे हर फूल का कुछ सुगंध है, जैस्मिन का फ्रेग्रेंस अलग, चंपक का फ्रेग्रेंस अलग, बेली का फ्रेग्रेंस अलग, रोज गुलाब का फ्रेग्रेंस अलग, अलग अलग रोज का फ्रेग्रेंस अलग, मैरीगोल्ड का फ्रेग्रेंस अलग। तो आत्मा का एक मूड होता है, ये मूड ऑफर करना पड़ेगा। यू ऑफर योर मूड टू गॉड। We were talking about this yesterday, we started this topic. But in beginning, mood is like unclear. फिर चेतो धर्पण मार्जनम, हरि नाम के साथ धीरे धीरे you have to cleanse and reveal your आत्मा स्वरूप, और आत्मा का स्वरूप के साथ क्या भाव है, और ये भाव भगवान को कैसे अर्पण करना, ये हमारा भक्ति प्रोसेस है, ठीक है।
तो सबसे बड़ा तरीका मूड निकलने का या मूड को रिवील करने का, क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम, Mahaprabhu said you have to cleanse the mirror of your hearts. क्योंकि प्रभुपाद हमको बोला 16 माला करना, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद 64 माला करने के लिए बोला, महाप्रभु 64 माला करते थे। हमारे शिक्षक गुरु सुबह 2 बजे से लेकर 8 बजे तक 64 माला के बाद फिर रसोई बनाते सबके लिए, फिर बोलते ये प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, तो माला करना, पर उद्देश्य क्या है? व्हाट इज आवर पर्पस इन चैंटिंग माला? तो महाप्रभु जो हमको हरिनाम करने के लिए बोला, श्लोक क्या बोला? पहले सबसे पहले बोला चेतो धड़पन मार्जनम, cleanse the mirror of your heart. When the mirror of your heart is cleansed of all material attachment, इसलिए बोलते विषय जे प्रीति एवे आचे अमार से माता प्रीति होक चरणे तुम। When the mirror of the heart is cleansed of all attachments for this world, by offering that attachment and love to God, like a mother offers her love to her child, like a husband and wife offer their love to each other, like friends offer their love to each other, you learn to offer that natural love to God. स्वाभाविक प्रीति भगवान को अर्पण करना आरती के साथ, every day, सुबह शाम दोपहर या एक दिन, मतलब कम से कम मॉर्निंग में आरती लगाया, तो भगवान चेतो दर्पण मार्जन, प्लीज क्लेंस माय हार्ट सो दैट आई कैन सी मेरा आत्मा का स्वरूप, आत्मा का स्वभाव, आत्मा का प्रीति, आत्मा का मूड। ठीक है, कोई राम भक्त, कोई कृष्ण भक्त, कोई राधा रानी का दासी, कोई कृष्ण का साका, कोई माता यशोदा का अनुगत्य, अलग अलग अनुगत्य में हम भगवान के पास जाएंगे। जैसे संक लक्ष्मी आश्रय किया, तुलसी आश्रय किया, तो इफ वी वांट टू गो टू गॉड वी हैव टू गो ऑन शेल्टर ऑफ हिज फैमिली। परिवार, भगवान का परिवार होता है, जैसे आपका परिवार, वेरी इंपॉर्टेंट परिवार। सो इंद्रद्युम्न महाराज सपना आया भगवान नील माधव, किंतु पता नहीं कहाँ है। गॉड कम्स इन ड्रीम बट दिख नहीं रहे बाहर, तो आपने सारे मिनिस्टर्स को भेज दिया, जाओ मैंने एक मूर्ति देखा, मिलो, यू गो एंड फाइंड दैट मूर्ति, तेजी निकलो। सब लोग 4-10 दिशा में निकल गया, एक विद्यापति मिल गया। बहुत लंबी स्टोरी है। विद्यापति एक जंगल में था, उदास हुआ, हम मिल नहीं पाया, क्या लाभ है मेरे जीवन का। यंग था, सुंदर लड़का, जैसे हमारा वो यंग आदमी, ठीक है, यंग नॉट ओल्ड। बहुत पुराना मिनिस्टर भी गया ना, यंग मिनिस्टर विद्यापति। तो ही वाज गोइंग इन वन जंगल, फिर भिक्षा खाता था, तो एक घर में भिक्षा करने गया, और एक लड़की थी, 16-17 साल की है, उनका नाम ललिता। भिक्षा मांगा तो बोला अभी मेरा पिता आएगा तब देंगे, हम अकेले है, आपको नहीं देंगे, बाहर रहना। ठीक है, तो थोड़ा समय बाद अभी डस्क आ रहे, आफ्टरनून फिनिश्ड, डस्क, तो फिर हिल से चढ़कर आ रहे वन हर फादर, उनका नाम विश्ववासु है, ट्राइबल किंग, बट प्रीस्ट था, लंबे और सोने की तरफ गोल्डन है, क्योंकि वो परफेक्टेड हो गया अपना भाव के साथ भगवान के प्रति अर्पण करना। He was perfected in worshiping God. Who was he worshiping? नीलमाधव। अकेला, किसी को भाग नहीं देता था। Only for me. God is only mine. ठीक है, तो विश्ववासु every day he would go and worship नीलमाधव। तो when he was coming, विद्यापति लगा इतना सुगंध, ऐसे लग रहे कोई स्वर्ग से चलकर एक देवता आ रहा है। He was feeling like one Gandharva was coming from heaven down the mountain. इतना बढ़िया सुगंध। तो प्रणाम किया, अरे फिर भिक्षा लिया। फिर विद्यापति चालक है, विद्यापति एक ब्राह्मण है, ब्राह्मण बहुत चालक होता है। तो बोला मैं आपके घर में 1-2 दिन रह सकता प्लीज, अभी मैं राजपुरोहित है, आई एम द प्रीस्ट ऑफ द किंग, मुझे कुछ काम में भेज दिया, आपके घर में 2-3 दिन रह सकता, क्योंकि स्पाई है, he was actually spy। तो वहाँ ब्राह्मण इज आस्किंग भिक्षा, आप नो बोलेंगे तो अपराध हो जाएगा। तो बोले ठीक है रहना। तो एवरी डे वो देखता था कि विश्ववासु कहाँ जाता, कहाँ आता, सुबह जाता, शाम को आता, और सुगंध के साथ है, सुबह सिंपल जाता, शाम को ऐसे इतना सुगंध के साथ आता। तो फिर स्पाई क्या करते हैं, अच्छा तरीका बना लेता। If you look at American culture ना, CIA अगर रशिया में गुप्तचर बनना चाहता, if he wants to be a spy in Russia, वो किसी KGB का लड़की से शादी करेंगे। ठीक है,
शादी के बाद किसी को संदेह नहीं होता, ठीक है। तो क्या विद्यापति ललिता से प्रेम करने लग गया, बस प्यारी बात करते कुछ धीरे धीरे तो बस प्रेम हो गया। तो एक दिन ललिता जाके पूछा बाप से, मैं उनसे शादी करना चाहती हूँ। क्या हो गया काम है रिश्तेदार बन गया। तो वंस ये रिश्तेदार ही है तो बाप का इष्ट मेरा इष्ट हो गया, जो बाप का ठाकुर जी मेरा ठाकुर जी हो गया, चालक है। तो ललिता से शादी हो गया और फादर भी हैप्पी है क्योंकि राजपुरोहित है, कम आदमी नहीं, अच्छा आदमी है, मैरिज है। तो शादी के बाद ललिता से पूछा तेरा बाप कहाँ जाते, बस संकोचती है, वो बोला हम बोल नहीं सकती है, मेरा बाप का ये स्वार्थ है, किसी को बोलना मत, कोई पूछते तो बोला हम नहीं जानती है, मैं कभी गया नहीं। तो बहुत बार बोला, एक हर रोज 4-5 बार बोलता था। और क्या बोलता है, मैं तेरा पति हूँ, मेरे को तू बोलना पड़ेगा। तो बोल दिया एक विग्रह है, विग्रह का सेवा करते। तो फिर विद्यापति बोला मुझे एक बार दिखाओ, वन टाइम। तो बहुत बार के बाद, बहुत प्रार्थना के बाद विश्वास बोला ना 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 ना, घर दे दिया, अपना बेटी भी दे दिया, अपने को सन इन लॉ बना दिया, किंतु मेरे जो हृदय के भगवान में तेरे को दूंगा नहीं है। द गॉड ऑफ माई हार्ट मेरा हिस्सा है, मेरा है, आप लेंगे तो लेके भाग जाएंगे, मैं जानता, मैं दूंगा नहीं है। बार बार प्रार्थना किया, बोला चलो I will put a bandage on your eyes, जैसे आप देख नहीं सकता। I will not walk with you, I'll put you on a bullet cart. I will let you go there, see my deity one time, then you come back, then don't ask again. क्योंकि वो मेरा ईश्वर है। मेरा मतलब ये है ना, अपना अपना हार्ट में अपना अपना परमात्मा के साथ संबंध है, वो आपका भगवान है। भगवान एक, रूप अनेक, ये सुना है, भगवान एक रूप अनेक, इसका मतलब है सबके हृदय में भगवान विराजमान है, वो आपका प्रभु है। जैसे हमारे गुरुदेव का रमन बिहारी है, स्वामी प्रभुपाद का अलग होगा, हमारा परम गुरुदेव का विनोद बिहारी है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद का गंधर्वी का गिरिहरि है, रूप गोस्वामी का गोविंद जी है, रघुनाथ दास गोस्वामी का और दामोदर जी है, सनातन गोस्वामी का मदन मोहन जी है, मधु पंडित का गोपीनाथ जी है, किसी का गोकुलानंद जी है, किसी का वृंदावन चंद्र है। हर भगवान का रूप अलग अलग भक्ति के लिए अलग अलग होता है। कहाँ रहता है? अपना हृदय मंदिर है। केवल आप पहाड़ के ठाकुर जी लगाएंगे, बड़ा मंदिर बनाएंगे, सबको बुलाएंगे, देखो हम कितना बड़ा भगवान का भक्त, कितना अच्छा हम पंडित है, आओ मंदिर में। बट इफ यू डोंट रियलाइज एंड वर्शिप गॉड इन योर हार्ट, सब भगवास है, ठीक है। तो विश्ववासु उनको लेके गया, विद्यापति आंख जब खोला, देखा नीला माधव कितना सुंदर रूप है। क्योंकि इतना सुंदर क्यों है? भक्त का प्रीति से भगवान का स्वरूप इतना सुंदर होता। If you want to see the most beloved, beautiful form of Krishna, किसके पास जाना पड़ेगा? राधा रानी है, क्योंकि राधा रानी का सबसे बड़ी प्रेम है। तो प्रेम के साथ भगवान का स्वरूप बदलता, प्रकाश होता। If you look at 10 अवतार, मत्स्य, कूर्मा, वराह, परशुराम, नरसिंह, अलग अलग, राम, कृष्ण, सबसे श्रेष्ठ, सबसे हाईएस्ट राधा रानी का जो पूज्य मूर्ति है कृष्ण की, सबसे सुंदर होगा तो नीला माधव। दिस स्टोरी इज देयर ना। तो जब नीला माधव, बहुत सारा स्टोरी है, आई एम गिविंग एसेंस एंड फिनिश। तो जब नीला माधव को देखा, बोला मेरा जीवन सफल हो गया। तो देन ही वाज सिटिंग बाय द लेक, देयर वाज अ लेक देयर इन द हिल्स। विश्ववासु वाज डूइंग पूजा, क्या करते थे? आराधना। क्या करते? अभिषेक। अभिषेक के बाद क्या? चंदन पीसा लगाया, जैसे आपका प्रभु करते ना, तुलसी प्रभु, सारे रोज चंदन के साथ केसर, उसको शालग्राम मिलाया, तुलसी लगाया, फूल लगाया, भोग लगाया। ये रिचुअल है, ये क्रिया है, भक्ति की ये मूल क्रिया है, किंतु प्रीति के साथ और भगवान के नाम के साथ, ठीक है। चैतो दर्पण मार्जन। सो देन विद्यापति वाज सिटिंग बाय द लेक और विश्ववासु वाज डूइंग पूजा। तो क्या देखा? वन ट्री वाज देयर, उनके ट्री में वन पक्षी था। पक्षी बूढ़ा था, ओल्ड बर्ड्स, बहुत साल से देख रहे विश्वास आते जाते भगवान, तो वेर ओल्ड बर्ड। तो क्या टाइम के हिसाब से शरीर निकल जाता, तो इस बर्ड्स बॉडी टाइम हो गया, निकल गया। हमारा एक सॉन्ग है, कमल धल जल जीवन तलमाला, लाइफ इज हैंगिंग लाइक अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द एज ऑफ अ पेटल। जब निकलने का टाइम है, निकल जाएगा, कोई रुक नहीं सकता,
ठीक है. तो bird fell, landed in the water. विद्यापति देखा, उनका चतुर्भुज हो गया, बस निकल गया वैकुंठ. The bird came out and forearm formed Narayan. From Vaikuntha came Garuda. He sat on the back of Garuda. बस निकल गया वैकुंठ. मोक्ष के ऊपर है. Beyond मोक्ष वैकुंठ धाम है. Beyond वैकुंठ धाम अयोध्या धाम. Beyond अयोध्या धाम वृंदावन धाम. इससे पहले मथुरा धाम, वृंदावन धाम, वृंदावन धाम में गोवर्धन, गोवर्धन में राधा कुंड. ये सबसे ऊपर जगह है. ये रूप गोस्वामी का श्लोक है. क्या बोलते हैं? वैकुंठ जनितो वर माधुपुरी श्लोक है. ठीक है. तो विद्यापति saw the bird became forearm formed Narayan, went to Vaikuntha. तो वो क्या सोचा? चलो, climbed up the tree. Top of the tree, बहुत बड़ा बड़ा पेड़ था. Top of the tree, and it was about to jump. तो क्या हुआ? विश्ववासु आया. हाय, क्या कर रहे? फिर आकाश से भगवान का वाणी आया. अरे तेरे लिए मैं काम में भेजा. तू बिना काम करके छोड़ रहे अर्जुन की तरफ. मैदान को से भागना चाहता, रान छोड़ बनना चाहता. You don't want to do your dharma? मत कूद, don't jump. ठीक है. Then he came back down. So everyone likes finishing the story, huh? Finish the story. ठीक है. 2-3 minutes. God is in our heart. We should worship God in our heart. This is our own Prabhu. Narottam Das Thakur says, "Apane bhajan kata na kihibo jata tata." Your own bhajan, your own Ishwar, your own Bhagavan के साथ जो प्रेम है, किसी को बोलना नहीं है. अगर किसी को बोलना तो केवल गुरु से बोलना, और बहुत जो डीप कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड उससे बोल सकते हो, और किसी को नहीं बोलना. क्यों? राधा रानी बोलते हैं, भगवान से जो प्रेम है, प्रेम प्रदीप जो भगवान को अर्पण, यू प्रोटेक्टेड इन योर हार्ट. डेली भगवान को, हम कल बोला ना, मन मन मंदिरे, हरिनाम करते समय भगवान को आरती लगाना. याद रखना चाहिए कि भगवान एक, रूप अनेक. मेरा हार्ट में भगवान का रूप होगा, मेरा आत्मा के साथ भगवान के साथ संबंध होगा, परमात्मा के साथ. ये कैसे रिलेट होता है? गोपाल मंत्र से, हरिनाम महामंत्र से, या काम गायत्री से. अपना अपने इष्ट देव का अपना गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र जाप करने से, गायत्री मंत्र के साथ अर्पण अर्चन सब कुछ करना चाहिए. इसके साथ अपने आप रिवील हो जाएगा. ये गुप्त रखना. जगत के लिए भी भगवान होना चाहिए, साधारण पब्लिक के लिए. Not everyone is praying to see God, to love God, but for them, सबका कल्याण के लिए भगवान का मूर्ति पूजा प्रतिष्ठा हुआ. तो क्या किया? लास्ट स्टोरी है ना, विद्यापति स्पाई, बस रोने आ रहे, भगवान इतना सुंदर, बट दिमाग में ये 5% या 4% कुछ परसेंटेज है, लाइक बैटरीज ऑन 2%, काम भी चल रहे ना. तो उनके दिमाग में ये भी परसेंटेज है कि हाँ, जो इंद्रदुम्न महाराज का सेवा करना. तो इसी दिन सुबह क्या हुआ? आने से पहले अपना ललिता जो पत्नी को बोला, अरे मैं काम कर, एक बैग दे दो मस्टर्ड सीड्स. और आई एम जब गोइंग ऑन पुलिंग कार्ट, विश्ववासु आगे, मैं बैठूंगा पीछे. हाँ, हम हरि नाम कर रहे, हरे 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 हरे, राम राम राम. बट एक दो, like every 10 seconds he would drop mustard seed, mustard seed, mustard seed, mustard seed. So when he came back to the village, क्या बोला? ठीक है, बहुत टाइम हो गया, मैं एक बार अपने इंद्रदुम्न महाराज से मिलना पड़ेगा. हमारा 6 महीना हो गया, शादी हो गया, ये सब हो गया, परमिशन ले लिया विश्ववासी से, बस निकल गया ओडिशा का इंद्रदुम्न महाराज के साथ. तो बस मिल गया, इंद्रदुम्न महाराज को बोल दिया कितना खुशी के साथ. वो बोला, चलो मेरा रानी है, मेरा राजकुमार, मेरा राजपूत, मेरा जितना पुरोहित, मेरा जितना सब्जेक्ट, सब जाएंगे दर्शन करेंगे भगवान को. तो कम से कम आर्मी के साथ 10-15 हज़ार लोग के साथ नीलमाधव की तरफ निकल गया. वो भुवनेश्वर से अंदर जाके पुरी से 4-5 लाइक घंटा दूर है गाड़ी से. तो मतलब 2-3 हफ्ता, 1 महीना, पता नहीं कितना लग गया ना. 5 में पहुंच गया, बोला है नहीं कुछ, भगवान का माया दग गया, मिला नहीं है. क्योंकि कैसे कर सकता है? छोड़ी नहीं चलेगा, भगवान के बिना की इच्छा है. He thought, oh, I will see the mustard seed, will come mustard plant, then we can go see in the Neela Madhav. गए देखा नीला माधव है नहीं, छिप गए सब. क्योंकि अपने अपने भगवान अपने अपने हार्ट में रखना. ठीक है, मंदिर सबके लिए होता, पब्लिक के बेनिफिट के लिए होता, किंतु ओनली वी गो मंदिर संडे, क्रिश्चियन गो संडे. इस्लाम में कब जाते मस्जिद? फ्राइडे. ठीक है, दिस इज वन फ्राइडे लाइन ना, शुक्रवार है.
ठीक है, शुक्रवार, राइट, देन शनिवार, देन रविवार है. तो everyone goes to their temple different days. पर हम सुबह जब उठ जाता अपने टेम्पल में जाना, शाम को जब सो जाते अपने, जैसे हमारा ब्रजनाथ प्रभु कल बोला था, एक महाराज से सुना वृंदावन, रात को जब सोने जा रहे तो सबसे लास्ट प्रीति भगवान के लिए, सुबह जब उठ जाते सबसे पहले प्रीति भगवान का, जब खाते समय सबसे पहले प्रीति भगवान का अर्पण करना, भोग प्रसाद लेना. तो ये अपना मंदिर होता, उसका मंदिर बनाना सीखना पड़ेगा, बाद में बाहर का मंदिर बनेगा. ठीक है, इसलिए तो फिर जब समुद्र की तरफ लौट के आया, इंद्रमास रोने लग गया. ये एक बार सपने में दर्शन हुआ भगवान को, फिर नहीं दर्शन किया, फिर बहुत रोने के बाद, बहुत प्रार्थना के बाद फिर साउंड आया आकाश से, मेरे एक दारू रूप हम आ रहे, 4, आई एम कमिंग इन दारू फॉर्म. मेरे भाई के साथ, मेरे बहन के साथ, मेरा शक्ति के साथ है. तो 4 logs came on the ocean there of Jagannath Puri. This is called Tirtha. This is a very famous special place. This is a place where Markandeya Rishi came after Pralay. When the Vishwa was, Pralay means covered in water है. जब प्रलय हुआ तो केवल जगन्नाथ पुरी बच गया, क्योंकि जगन्नाथ का नित्य स्थान है. If you go to Puri ना, आप जा सकते, हम नहीं जा सकता. You can see Jagannath anytime. I can only see Rath Yatra. Anyhow, these logs came and he बोला चलो किसी अच्छा आर्किटेक्ट के पास जाओ, किसी न किसी आप कोशिश करो, सिंबॉलिक कुछ बनाओ, मेरा मूर्ति है. तो सब लोग कोशिश किया, नहीं कर सकते मूर्ति है, भगवान है, कैसे बना सकते मूर्ति भगवान को. One story, Bhaktivinoda Thakur, जब बच्चा था, Bhaktivinoda Thakur is a great saint in our line, one of the founder saints in our line, very beautiful. We had his biography, you can read it sometime. So he wrote, when I was a child, his autobiography, he said, I would go to the people who would make murti, and I would ask them, when does God come in the murti? कोई बोलते जब आप आँख के खजल देते मूर्ति आता. He said, I looked and I didn't see God come. कोई बोलते जब विग्रह प्रतिष्ठा होता है तो then भगवान comes. He said, I saw विग्रह प्रतिष्ठा, God didn't come. He said, मैं बहुत कुछ देखा. He बोला, फिर I understood, anyone doesn't have love, then God never comes. Anyone has love, and with love they offer anything to God, God comes. Many stories of Vigraha Puja. One quick story. Raghunandan ka beta, Mahaprabhu ka Parishad Raghunandan, he was a boy. When he was like 6 years old, his father Mukunda told him, offer bhoga to my Gopinath Didi. They had small Gopinath Didi. And his father went on work. His father was a doctor. So the boy was young, and Mataji gave tali. Bola Bhagavan ko arpan karo. So he was a young boy, he was innocent, bole wale. So Bhagavan ko bola, tu kha le, खाए ने, अरे तू खा ले, खाए ने, तू खा ले, खाए ने, मेरा माँ क्या बोलेगा, बोलेगी है, खाए नहीं तू, बाप के आएंगे, बोला मैंने अपना बाप का काम नहीं किया, तू खाए नहीं. तो इतना बार बोला, मंत्र जंत्र कुछ नहीं जानता. He didn't know anything. Father would do mantra, archan, ritual के साथ कितना पूजा किया. But Raghunandan didn't know any ritual, didn't know any mantra. He said, I'm 5 years old, I don't know anything. He only knew Bhagavan tu le, khale, 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 khale. If you read Mahaprabhu Leela, it's there. तो क्या किया गोपीनाथ, बस प्लेट से लड्डू निकल गया, खाया, एक दूसरा लड्डू खाया, बोला कोई देख नहीं रहा ना, no one is watching. माता जी रसोई में है ना, she's not watching, अपने रूम में रसोई बनाया, बस अपने रूम में. तो फिर गोपीनाथ ate everything, whole plate. फिर रघुनंदन प्लेट लाया माता जी को, बोला तूने खाया सब, अरे ये भगवान के लिए दिया, आपने खाया, you ate it for God, Krishna ate it. She had no vishwas. When father came home, he was doing this 3-4 times. Father came home, बोला भोग लगाया, बोला हाँ मैंने लगाया. He asked his wife, क्या हुआ, हम भूख लग गया, मुझे खाना दो. बोला आज कृष्ण सब कुछ खाया. हमारे लिए कुछ नहीं है, ठीक है. तो फिर he had no faith. God is only मूर्ति, God is not God. God पत्थर है, God लकड़ी है, God एक पेंटिंग है, ये God नहीं है. Abrahamic थे ना, ये idol worship है ना. प्रीति के साथ जब भगवान को कुछ देता है तो भगवान आ सकता. Otherwise idolatry है, ठीक है. So he said, I don't have faith. So he hid, जैसे सोफा है ना, सोफा के पीछे छिप गया. बोला एक बार और भगवान गोपीनाथ को दे दो. तो बच्चा रघुनंदन he's giving गोपीनाथ, ले 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 ले, आज खाया नहीं. आधा घंटा, 40 मिनट, 1 घंटा रोने आए. तो गोपीनाथ जल्दी एक लड्डू ले लिया
When he ate half the laddu, उनका मुकुंद आया, hey भगवान, you don't love me, you only love my son. मुझसे प्रेम नहीं करते कि फिर मेरे बाप से प्रेम, you only love father. तो इसके बाद ठाकुर जी very famous है. You can see he's like half, then he became again Murti, half laddu in his hand. So Jagannath is like that, no? Then they fashioned Jagannath with Vishwakarma. Vishwakarma is architect of demigods. So he came in the form of an old man. उनके cane के साथ बोला हम बुरा कर सकते नहीं कर सकते. जैसे हम सोचते स्वामी प्रभुपाद 70 years old, इतना दुनिया के मिशन कैसे कर सकता? Old man, हम जानते नहीं ना. Old man नहीं होता. सब नित्य किशोर या नित्य किशोरी है. Eternal youth. Atma is not old. गीता का श्लोक क्या? न जायते म्रियते वा कदाचिन नयं भूत्वा भावित भानुभूय अजो नित्य सस्वतो यंग पुरानो न हन्यते हन्यमाने शरीरे. Soul is eternal youth. सबसे पुराना किंतु सबसे यौवन है. तो the old man, but he was young. He said, ठीक है, स्वार्थ है, you make mandir closed and I will make the deity of the Lord. But you give me 21 days time, no one can enter. तो एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गया, 2 weeks finished. तो इंद्रद्युम्न महाराज का वाइफ का नाम कुंदीचा देवी है. तो वो बोला, she wanted to see how the Murti is coming along progress. But she took one excuse. 2 हफ्ते खाया नहीं. Open the doors, give him food. पर वो विश्वकर्मा देवता है, हमारा अन्न जल किसी नहीं खाते. He doesn't eat like that. But every day she asked, and finally Indra said, okay, no problem. Why? How long can you say no to your wife? Not easy. Add daughter. Not easy. ठीक है? तो जब द्वार खुल गया, विश्वकर्मा अप्रकट हो गया, disappeared. वो मूर्ति है जो हमारा जगन्नाथ है, जिनकी हाथ नहीं, जिनकी पैर नहीं, जिनकी आंख बड़े बड़े, जो eyelid नहीं है. ये भगवान है क्या? ये भगवान को जगन्नाथ, गुरु नानक बोल रहे हैं ना, भगवान मैं आपका आरती कैसे करूंगा? जो तारों की मंडली से आपका आरती हो रहा है, जगन्नाथ है, मेरा नाथ है, किंतु सबकी नाथ भी है. Muslim का नाथ है. On Rath Yatra time, Muslims will come and they will offer coconut to Jagannath also. Bideshi also, we can offer, like they say, Jagannath is so merciful at Rath Yatra. You know, Rath Yatra, Krishna is going back to Vrindavan. Very merciful. Radharani's gopis are pulling Jagannath to Vrindavan. This story is there in Jagannath Katha. So anyone who is coming on the path, millions of people come. I've been there many times. Ashtarya ki baat, जैसे कुंभ मेला किंतु जगन्नाथ के लिए. Thousands, मतलब कम से कम 20 लाख 30 लाख लोग आते हैं. सब भगवान को अपने आंख से आरती कर रहे हैं. और भगवान जगन्नाथ के बड़े बड़े आंख है, सबको देख सकता है. और नो eyelid है. Why no eyelid है? तो जब गोपी कृष्ण के साथ वृंदावन में थी है, तो गोपी were cursing Brahma. भगवान, they were cursing चतुर्भुज ब्रह्मा. अरे ब्रह्मा, you are secondary creator. तुम्हारा दिमाग नहीं है, क्या बनाया? eyes के साथ eyelid क्यों बनाया? क्योंकि जब हम भगवान का अपने आंख से जब आरती करते, तो बस ब्लिंकिंग होता. तो गोपी curse Brahma. Next form will come, no need eyelid. Jagannath no eyelid. ठीक है? Why? Eyelid is one obstacle. तो जब गोपी ब्लिंकिंग होती थी है, युगायिता निमेशेन चक्षुष प्रविशायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद. When they close their eyes, then शून्यायतम, nothingness. Nothingness में रस नहीं, nothingness में प्रीति नहीं, nothingness में रति नहीं, nothingness में nothing है, nothingness नहीं है. You should think, nothingness does not exist. जो non-existence, वो भी existent नहीं. Okay, ये हमारा वैष्णव का कथा है. Whatever they say is non-existence, that does not exist. By their own examples. Non-existence does not exist. So जब गोपी बोलते थे, when our eyes close, we think, खाले हो गया. But that is also Jagannath form. इसलिए जगन्नाथ खाली है. मतलब खाला, dark, शाम. Jagannath is black, like universe is dark. Nighttime, dark, no sun, darkness. But then sunrise, then he is Gauranga, golden hai. Yeah, Radharani, golden hai. All right? But when the gopis close their eyes, you see black. But they say that is also Jagannath. Radharani, when she goes in Man, she tells the gopis, cover your black hair with jasmine. क्योंकि हम कोई खाला चीज को नहीं देखेंगे.
Radha Rani jab maan mein ho jati hai, she said all the gopis manjaris have black hair. She said cover the black hair with only jasmine. That's why you see South India lady has jasmine hair. Radha Rani Anugatya. I don't want to see anything black. Why Krishna se maan ho gaya? But she's saying even when my eyes are closed, God is there. That is Jagannath. Why? He's in our heart. ठीक है? So anyhow, this deity of Jagannath is established. Jo apani pado, without feet, material feet, he has transcendental feet. Without material hands, he has transcendental hands. Without material eyes, he has transcendental eyes. तो वो भगवान को कैसे हम देख सकता? इसलिए लास्ट में एक श्लोक बोलेंगे, प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना शन्तस्सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदर अचिन्त्य गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि. This is Lord Brahma's prayer to Govinda Adi Purush. When Brahma saw the vision of the Lord, he got Gopal Mantra from Saraswati Devi. He chanted Gopal Mantra, did tapasya, then he saw the Lord Govinda and he prayed like this. जब हमारा आँख प्रेम की अंजन से डेकोरेशन होता, श्रृंगार होता, तो ये प्रेम के आँख से भगवान को देख सकता है, जो भगवान अचिंत्य गुण स्वरूपम. That Bhagavan who is otherwise inconceivable. जैसे महाप्रभु बोलते हैं अचिंत्य अभेद भेद तत्व. चिंत्य भेद भेद तत्व. हम भगवान से डिस्टिंक्ट है और भी वन है, सेपरेट है वन. गुरु नानक कैसे आरती करेंगे ना, जैसे कल मैं आपको बताया एक श्लोक है, लास्ट लाइक उज्ज्वल नीलमणि का श्लोक है, रूप गोस्वामी का श्लोक है, राय रमन संवाद में आता है. तो एक श्लोक है, क्योंकि हम मंदिर का डिजाइनिंग चल रहे हैं ना, तो ये श्लोक इतना डीप टॉपिक है. तो तुलसी देवी जो वृंदा के स्वरूप में कृष्ण से बात चल रही है, तो कृष्ण को बोला आज सुबह मैंने एक आश्चर्य चीज देखा. आई सॉ वन वंडरफुल थिंग है. आई सॉ क्यूपिड मेकिंग अ पेंटिंग है, मंदिर के अंदर है, और वो पेंटिंग किस पेंट से बना रही? कामदेव जो क्यूपिड है, जैसे हम काम गायत्री करते हैं ना, कृष्ण काम देवाया पुष्प बनाया, तो वी चैंट काम गायत्री. कृष्ण इज original Kamdev, but his secondary expansion, actually, you know who Kamdev is? He is Krishna's son. जब रुक्मिणी के साथ बच्चा हुआ, पहले बच्चा कामदेव है, Krishna's son. तो वो बोला, मैं Vrinda Devi is telling Krishna, I saw one thing this morning. Kamdev is making a painting, and the paint is the love from the power of the moods of Radha Krishna when it's melted, like Jagannath is melted form. Jagannath is Prem Mai Kalevara. Jagannath is the melted form of love of God. Like his eyes are always open. When Jagannath appeared, many stories. He appeared, why? He was going to Vrindavan, he saw the Radharani in separation, and he took this form of Jagannath, from Nila Madhav to Jagannath. This is the story of Braj, Govinda Mars tells. So when this Kamdev is making painting, he is telling that the paint is the molten love of Radha Krishna when they are in the highest stage of meeting. And that highest stage of meeting is called Prem Vilas Vivarta. At that time, Radharani is so absorbed in Krishna, she forgets she is Radharani. Krishna is so absorbed in Radharani, he forgets he is Krishna. We see this in Imli Tala, in Vrindavan. Krishna is saying, Radhe, 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 Radhe. Fir he appeared as Gaura, golden. Okay? And sometime, if you go to Tota Gopinath in Jagannath Puri, nearby Jagannath Puri temple, that deity that Lord Mahaprabhu entered, if you look in Tota Gopinath thigh, there's a golden line where Lord Chaitanya entered. If you go to Banki Rai in Ekachakra, there's a place where Lord Nityananda entered in Banki Rai. Okay? He didn't disappear. So, that Radharani at Tota Gopinath, she's chanting Krishna, 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 and she became Sham. So then Tulsi Devi, Vrinda is telling Krishna, Kamdev is making a painting with the love in your hearts, in your highest stage of meeting, when you experience this Prem Vivarta, or this is coming in that color of Kumkume, para aage. वो painting बना रहे, और पूरा universe को decorate कर रहे हैं, in the grand temple of the universe है. ये आरती करना. ये गुरु नानक का आरती कैसे करूँगा? जितना ब्यूटी है वर्ल्ड का, वहाँ से आता प्रेम. भगवान के जो मतलब शक्तिमान के बीच में जो प्रेम है, वहाँ से पूरा दुनिया के जितना भी ब्यूटी है, वहाँ से आता. तो भगवान को क्यों नहीं आरती करूँगा?
ठीक है, यही लास्ट है. Why not doing आरती to God? क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है. वंश कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च